Good evening, students. In this, we will learn about the rules of congruency. So, first rule is SAS means side angle side. If you have two triangles like this, in which the two sides are equal and one angle is equal, so these two triangles are congruent to each other. Now, see how. AB of this triangle, ABC triangle, and we have PQR triangle. AB side of ABC triangle is equal to the PQ side of PQR triangle. So this side is equal to this side. You can't say that this side is going to be equal to this side. No. इस ट्राइंगल की अगर ये वाली साइड इक्वल है तो इस ट्राइंगल की भी यही वाली साइड इक्वल होगी. बिकॉज जब आप ट्राइंगल को सुपरपोज करोगे दूसरे ट्राइंगल के ऊपर तो वो कंप्लीटली उसे सुपरपोज करेगा. तो ये वाली साइड यहां पर आएगी, ये वाली साइड इसके ऊपर आएगी और ये इसके ऊपर. सो इट मीन्स ए बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू पी क्यू. एंगल ए एंगल पी की इक्वल होगा. इसी तरह से ए सी साइड पी आर साइड की इक्वल होगी. सो एंगल साइड देन एंगल देन साइड अगेन साइड एंगल साइड. सो आपकी क्या ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड. दोनों साइड के बीच में जो एंगल होगा वो आएगा एंगल आपका. साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. सो दिस इज द रूल नंबर 1. नेक्स्ट इज AAS मीन्स एंगल एंगल साइड. दो एंगल्स होंगे और एक साइड होगी. तो एंगल A एंगल P की इक्वल है, एंगल B एंगल Q की इक्वल है और BC QR की इक्वल है. सो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से ये दोनों आपके ट्राइंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. नेक्स्ट इज साइड 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 मीन्स थ्री साइड्स. AB side is equal to PQ, AC, PR, BC, QR. So it means your triangle is congruent. ABC triangle is congruent to PQR by side, side, side. Fourth type is RHS. RHS means you have one angle as 90 degree. 90 degree. इसमें क्या होगा? योर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू दी हाइपोटेन्यूज ऑफ अदर ट्राइंगल. AC इज इक्वल टू PR, BC बेस इज इक्वल टू QR and angle B is equal to angle Q, each of 90 degree. So these triangles are congruent. Okay, and if you have like this triangles, एक ऐसे ट्राइंगल बना है और एक को आपने टिल्ट करके ऐसे बना दिया, बट यही वाली साइड उसकी इस साइड से इक्वल है और ये वाली साइड उसका बेस इससे इक्वल है और ये एंगल इससे. तो जब आप इसको उल्टा करोगे और इसके ऊपर रखोगे, सुपरपोज करोगे, तो ये कंप्लीटली सुपरपोज हो जाएगा. तो इट मीन्स these two triangles are congruent to each other. It is not necessary that आपकी ये फिगर ऐसे बनी है तो दूसरी भी ऐसी ही बने. नो, अगर आपको एक फिगर ऐसे बना कर दी है और दूसरी आपको ऐसे बना कर दी है, बट आप इसको जब रोटेट करोगे और इसके ऊपर रखोगे तो अगर ये सुपरपोज कर रहा है तो इट मीन्स these two triangles are congruent to each other, because I am saying this angle is equal to this angle, I am saying this side is equal to this side and this side is equal to this side. So it means these two triangles are congruent to each other. So these are the some basic rules of congruency. Now I would like to explain some questions of this exercise. I am starting with exercise 8th A. Now see exercise 8th A. I am doing question number 2. They have given you a triangle like this. ABC angle they have given you, in which they have given that PL is perpendicular on BA line and PM is perpendicular on BC, such that PL is equal to PM. You have to prove that BP is the bisector of angle ABC. BP, this line is the bisector of angle this. Okay, so I am taking from the figure itself, it's clear that
two triangles are there. So I am taking triangle this BPL and triangle BPM. Okay, in the question they have given you PL is equal to BM. An angle, you can see that if PL is perpendicular on AB, it means it is making 90-degree angle na. So PLB and PMB is of 90 degree and BP is common to both. So these two triangles are congruent by side angle side. So angle 1 is equal to angle 2 by CPCT and BL PM की equal है by CPCT. I have proved. So जब आपका angle 1 angle 2 की equal है तो it means this line BP जो है line angle ABC को बाइसेक्ट कर रही है. बिकॉज अगर बाइसेक्ट कर रही है तो इट मीन्स वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है ना वो एंगल. तो एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है जो मैंने अभी प्रूफ किया है. तो इट मीन्स बीपी जो एंगल एबीसी को बाइसेक्ट कर रही है. हेंस प्रूव्ड. ओके, नाउ आई एम डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी दिस क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको दी है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी एंड सी डी. ए बी एंड सी डी का एम मिड पॉइंट है. आपने प्रूव करना है बी जो सी ए है वो बी डी के पैरेलल भी है एंड इक्वल भी है. सो फ्रॉम द फिगर इटसेल्फ इट्स बीन क्लियर दैट देयर आर टू ट्राइंगल्स. सो आई एम टेकिंग टू ट्राइंगल्स सी ए एम एंड बी डी एम. ए एम एम बी की इक्वल है बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. इसी तरह से सी एम एम डी की इक्वल है बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट. और सी एम ए एंड बी एम डी ये दोनों एंगल्स क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं. तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल. साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो बाय सीपीसीटी आई विल से सी ए जो है बी डी के इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है. हेंस प्रूव्ड. ओके, नाउ आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन. See this question. AB is a line segment. AX and BY are two equal line segments drawn on. AB आपकी एक line segment है. इसके ऊपर AX and BX two line segments हमने draw किए हैं on the opposite sides of AB. Two equal है ये. AX जो जितनी AX है उतना ही BY है, बट ये opposite sides पे हमने draw करे हैं AB के. Such that AX जो है वो parallel है BY, YB के. If AB and XY intersect at M, प्रूफ करना है भी ट्राइंगल AMX is congruent to BMY. और AB एंड XY जब बाइसेक्ट कर रहे हैं एट M, ये भी आपने बताना है भी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो मैंने क्या लिया, पहले ट्राइंगल मैंने ले लिए AMX एंड BMY. इसमें मैं ये बोल रही हूँ जो AX है वो BMY के इक्वल है, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में. और एंगल XAM एंड एंगल YBM ये क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स. ये इधर बन रहा है, ये इधर बन रहा है ऑल्टरनेट. और इसी तरह से XMA एंड BMY ये क्या बन रहे हैं आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो बाय एंगल एंगल साइड ये आपके दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया आपका. नेक्स्ट बाय सीपीसीटी आई एम सेइंग दैट XM MY की इक्वल है एंड AM MB की इक्वल है. अगर AM MB की इक्वल है और XM MY की इक्वल है तो इट मीन्स जो AB और XY है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं M पॉइंट पर. तो यही चीज प्रूव होगी. अगर M इनका इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होते ये दोनों लाइनें M पॉइंट पर तो इट मीन्स ये वाली साइड इस साइड की इक्वल नहीं हो पाती. बट मैंने अभी बोला ये लाइन इस लाइन की इक्वल है, ये इतना सा पार्ट इस पार्ट की इक्वल है. तो इट मीन्स जो ये AB और XY है M पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. Okay, now one more question. In the given figure, line segments AB and CD intersect at point M in such a way that AM is equal to MD and CM is equal to MB. Proof करना है AC is equal to BD, but AC may not be parallel to BD. Now see this question. ये given figure है, इसमें AB and CD two line segments आपको दी हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है M पॉइंट पर. इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, दोनों लाइंस जब एक दूसरे को काटती हैं तो M पॉइंट पे कट कर रही है. इन सच अ वे AM जो है वो MB की AM जो है वो MD के इक्वल दिया हुआ है आपको.
ए एम एम डी के इक्वल दिया हुआ है और सी एम जो है वो एम बी के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने प्रूफ करना है जो ए सी है वो बी डी के इक्वल है, बट पैरेलल नहीं प्रूफ करना आपने। मैंने ये ट्राइंगल लिए एम ए सी और एम डी बी। ए एम जो है वो एम डी के इक्वल है, गिवन है आपको क्वेश्चन में, और जो सी एम है वो एम बी के इक्वल है, ये भी गिवन है। एंगल एम ए सी एंड एंगल एम डी बी 90 डिग्री बन रहे हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं ये दोनों। ओके, तो ये दोनों आपके आर एच एस से ये क्या हो जाएंगे, आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, क्योंकि बेस एक हाइपोटेन्यूज है और 90 डिग्री के एंगल्स ये आपको फिगर में ऑलरेडी दे रखे थे 90 डिग्री के एंगल्स। ठीक है, तो 90 डिग्री के बन रहे, तो आर एच एस से ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो बाय सिंप्लिसिटी ए सी क्या हो जाएगा, बी डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब बट आपने ये भी बताना है भी ए सी जो है वो पैरेलल नहीं है बी डी के, तो वो आप कैसे करोगे, जो एंगल एम डी बी है, एम डी बी वो किसके इक्वल नहीं है, एम सी ए के इक्वल नहीं है। ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं ना, ये और ये, अगर देखा जाए ये और ये एंगल ऑल्टरनेट बन रहा है, लाइन के एक इधर है, लाइन के एक इधर है, लाइन सेगमेंट के, बट ये आपकी इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक ट्राइंगल में एक ही 90 डिग्री का एंगल हो सकता है, इस ट्राइंगल में ये है और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल है। तो अगर ये 90 है तो ये तो 90 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स ये लाइन उस लाइन के पैरेलल नहीं है। सो दिस इज फॉर ऑल टुडे, you will do till question number 10. Thank you so much.